Good morning, students. Welcome back to our online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you just avoid to go outside your homes unnecessary. And if it should be necessary, you have to go outside your homes. Use the protective face of mask cover. Always be take a sanitizers with you. And when you are in a homes, always wash your hands within a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. Now, let me discussing about our topic what we have to be discussing into the previous classes about the control and coordination in living organism. In which, in the previous two part, we were discussing about how the control and coordination that can be taken place into the plants as well as into the animals. Plants having a specific formations to control and coordinate in which nastism and tropism that we are discussing. Also, the animals that can implemented as a part of the specific formation of nervous tissues, while the plants generally have to control and coordinate through the hormones. Now today we are discussing about the important part of the living organisms by which the entire activities of control and regulated, that is about the human brain. So that is a part of central nervous system. So that is called CNS. Central nervous system is made up with the two specific formation. One is called brain and another is called as spinal cord. The two main formation, one is called brain and another is called spinal cord. So central nervous system that consists the two of the things, which is the brain and spinal cord, which are the very important. And human brain that receive the messages from all the parts of body and that integrated it, and that should be respond to each and every organs according to that can be implemented. So that is the main structure of the human brain. So spinal cord, about the spinal cord that we are discussing in the previous classes, but today we are discussing about the main structure of the human brain. Now what is the structure of human brain? That is the first thing. What is the structure of human brain? Now if you are discussing about the structure of human brain, it is generally protected by the cranium. The human brain generally protected by the cranium, cranium, craniums. The human brain is protected by the craniums, and that having three membranes, three different membranes, that is called meninx, menings, meninx. So the structure of human brain is specifically that is protected by the cranium and which have the three different membranes, that is called as a meninx. That is the one structure of human brain. So in human brain there is a specific formation of liquid substance that should be seen, that is called cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid. So what do you mean by the cerebrospinal fluid? Generally, if you see that the human brain having a three different membranes of the layers, so it having a very small space. When the more than one membrane of the specific formation of the structure of brain, so when the membranes are enclosed to each other, which generally leaves the very small space, and that very small space of meninx, which generally filled with the specific part of the liquid substance that is called as a cerebrospinal fluid. Okay. Now, so this liquid substance of cerebrospinal fluid, which generally protects the three membranes of the human brain, that is called as the meninx. So it protects also any kind of the mechanical shock to the brain. So it protects the brain to any kind of mechanical shocks and just act like a cushion. जैसे cushions हमारे head को कैसे protect करता है, just similar like that, this meninx is a part of the cerebrospinal fluid protects our brains. ये हमारे brain को protect करता है. Specifically अगर आप देखें तो any adult persons having a specific weight of 1350 grams, ह्यूमन ब्रेन का जो अप्रोक्सीमेट वेट है किसी भी एडल्ट के अंदर, दैट इज 1350 ग्राम. सो द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन एनी एडल्ट पर्सन अप्रोक्सीमेट इज 1350 ग्राम्स, एंड इट इज मेनली मेड अप विद द नर्वस टिश्यूज. जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं मोस्टली मेड बाय द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ नर्व टिश्यूज के बने हुए रहते हैं. So also they are having a two type of matter which we have seen there. One is called gray matter, another is called as the white matter. When we are discussing about the spinal cord having a two different type of matter. One is called gray matter, another is called as the white matter. Similarly, into the human brain, there is a two type of the liquid substance which available into the human brain. One is called gray matter, another is called as the white matter. Gray matter is generally present onto the outer surface, but the white matter that is present into the inner surface. Spinal cord में अलग है, white matter outer में होता है, gray matter inner में होता है. Brain में अलग है, gray matter outside होता है, white matter inside होता है. So that is the general structure of the human brain, right?
जनरली इफ वी हैव बीन डिवाइडेड द ह्यूमन ब्रेन इनटू द 3 मेन पार्ट्स, तो ह्यूमन ब्रेन को हम 3 मोस्टली पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता है। फोर ब्रेन के अंदर आप देखिए तो सेरेब्रम आता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर आप देखिए तो कॉर्पस कॉर्टिसिना, और हिंड ब्रेन के अंदर दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। These are the general sections which generally involves as a parts of the human brain. Human brains के parts इसमें involve किए जाते हैं। Next, before discussing about the forebrain, पहला टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे forebrain, उसके सब टाइप्स, फिर midbrain और hindbrain के बारे में डिस्कशन करेंगे। So forebrain. Now the forebrain के अंदर पहला जो डिस्कशन that is called as a cerebrum, पहला जो टॉपिक है that is called as a cerebrum into the form of forebrain। अभी cerebrum जो है it is one of the largest and most complex part of the human brain। Cerebrum is one of the mostly complex and the largest part of human brain। हमारे ब्रेन का सबसे largest part और complex part वो होता है cerebrum। cerebrum के अंदर दो तरीके के हेमिस्फीयर होते हैं, that is generally called as a cerebral hemisphere। तो it consists of two type of the cerebral hemisphere। हेमिस्फीयर क्या होता है, वो दो पार्ट में, दो सर्कल का हाफ करो तो हेमिस्फीयर बनता है। वैसे ही ये जो पूरा सेगमेंट होता है सर्कल फॉर्मेशन, दो अलग अलग डिवीजन में डिवाइडेड होता है। जैसे ब्रेन सर्जरी होती है तो ये सेरेब्रल के हेमिस्फीयर को यहाँ से ओपन करके यहाँ से सर्जरी की जाती है। सो सेरेब्रम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। वो सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। उसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसके अंदर दो अलग अलग हेमिस्फीयर के सेक्शंस होते हैं, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं दैट आर जॉइंड बाय द स्पेसिफिक बैंड, जिसको हम कहते हैं कैलोसम्स। एक स्पेसिफिक बैंड होता है जिसको कैलोसम्स कहते हैं, CALLOUSEM, कैलोसम्स। तो ये जो हेमिस्फीयर के जो दोनों एंड्स होते हैं जिसको ज्वाइन करता है इस बैंड को हम कैलोसम्स कहते हैं, जिसके थ्रू ये दोनों पार्ट जो है वो सेरेब्रम के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ईच हेमिस्फीयर दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट लॉब्स। दो हेमिस्फीयर हैं आपके ब्रेन पे, तो ईच हेमिस्फीयर दैट डिवाइडेड इनटू द 4 डिफरेंट लॉब्स, 4 अलग अलग लॉब्स, LOBES लॉब्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इस चारों लॉब के अलग अलग नाम है, जिसको फ्रंटल लॉब कहते हैं, पैरिशियल लॉब कहते हैं, टेम्पोरल लॉब कहते हैं और ऑसिपिटल लॉब कहते हैं। ये 4 तरीके के लॉब्स होते हैं। इन चारों का अलग अलग काम है। ऑल दिस टाइप ऑफ 4 डिफरेंट लॉज हैव अ डिफरेंट वर्क। जिसमें पहला हम डिस्कशन करते हैं जिसको हम फ्रंटल लॉब कहते हैं, FRONTOAL, फ्रंटल LOBE लॉब। तो फ्रंटल FRNTAL फ्रंटल लॉब क्या काम करेगा? जनरली फ्रंटल लॉब having a specific activities to control the specific muscular activities। हमारा बॉडी के अंदर जो मसल्स की एक्टिविटीज होती है, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, कोई भी मसल्स के थ्रू जो एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? फ्रंटल लॉब करता है। सेम एज इट इज उसके साथ साथ जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक जैसे थॉट है, स्पीच है, मेमोरी है, दिस ऑल हैव टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बाय द टेम्पोरल लॉब। ठीक है, तो ये जो फ्रंटल लॉब, फ्रंटल लॉब का काम क्या है? फ्रंटल लॉब दैट कंट्रोल all these activities, specifically the muscular activities in your body, as well as it also can be controlled and regulate all these voluntary involuntary functions like thought, speech, memory. These are the functions that is controlled and coordinated by the frontal lobe, right? दूसरा आता है उसको हम पैरिशियल लॉब कहते हैं। पैरिशियल लॉब PARIETAL, पैरिशियल लॉब। पैरिशियल लॉब का क्या होता है? जनरली सेंसेशन, it having a specific activities to control and regulate general sensations like smell, touch, temperature. These are the general activities as a part of the sensation which feel by the body and which implemented to enter with the brain. उसको कौन एक्सेप्ट करता है? उसको कहते हैं पैरिशियल लॉब। तो पैरिशियल लॉब हैव अ स्पेसिफिक परसेप्शन ऑफ जनरल व्हाट सेंसेशन फील। सेंसेशन जो होता है लाइक टच है, स्मेल है, टेम्परेचर, उस तरह की जो फीलिंग्स आती है which can be controlled and regulated by the पैरिशियल लॉब। तीसरा आता है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब का स्पेसिफिक कंडक्शन होता है हमारे ऑडिटरी रिस्पॉन्स का। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो उसके लिए जो लॉब हमारे ब्रेन के अंदर रेगुलेटेड होता है वो होता है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब जो होता है स्पेसिफिक उसकी एक्टिविटीज होती है हमारी ऑडिटरी रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करने का। वैसे ही जो ऑसिपिटल लॉब होता है, ऑसिपिटल लॉब का स्पेशल काम होता है विजुअली रिसिपेशंस का। तो विजुअली जो इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं तो उसका काम कौन करता है? ये ऑसिपिटल लॉब करता है। तो ये चारों तरीके के लॉब्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं किसके अंदर? सेरेब्रम के अंदर। अब सेरेब्रम के अंदर एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी ये तो दोनों पार्ट जो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड है, जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन करते हैं उसको कॉर्पस कॉलोजन्स कहते हैं, राइट। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि जो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है लाइक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो आउटर रीजन होता है, आउटसाइड ऑफ द रीजन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर व्हिच डेंसली पैक्ड विद द नर्व सेल से बने हुए रहते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सो द आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर व्हिच पैक्ड विद द डेंस पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स which generally created cerebral cortex, जिसको आप cerebral cortex कहते हैं। और cerebral cortex is highly convoluted with this type of tissues which generally increase its surface area। तो ये जो cerebral hemisphere के जो outer regions के अंदर इस तरह के जो nerve tissues होते हैं, इतने ज़्यादा nerve tissues होते हैं कि वो क्या करता है, उसका जो पूरा एरिया है dense पैक्ट हो जाता है इस तरह के नर्व टिश्यूज से, जिसके वजह से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया जो होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, एंड विच हेल्प्स द इम्प्लीमेंट द वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज का वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। नाउ तो ये जो सेरेब्रम है इसका मेन फंक्शन क्या है, एक तो हमने उसके डिस्कशन किया। सेरेब्रम का मेन फंक्शन होता है कि जनरली इट हैविंग अ सेंसरी एरियाज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। तो जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम जो होता है सेरेब्रम होता है, और उसके अंदर एक मोटर नर्व भी होता है। मोटर नर्व विच जनरली इंपल्स दिस टाइप ऑफ मसल्स टू इंप्लीमेंट द ट्रिगर द ऑर्गन्स। तो ये जो सेंसेसरी ऑर्गन्स को रिस्पॉन्ड करना, उसके अकॉर्डिंग टू बॉडी को रिस्पॉन्ड करना, ये सारा काम जो होता है वो सेरेब्रम के अंदर होता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, फोरब्रेन ऑफ सेरेब्रम। सेकंड इज कॉल्ड एज अ थैलेमस, THALAMUS, थैलेमस। थैलेमस जनरली ऑलवेज बी प्रेजेंट इनटू द सेंटर ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का जो सेंटर पार्ट होता है उसके अंदर एक थैलेमस होता है। थैलेमस जनरली having to use all the sensory informations which is received by the cerebrum that reaches to that formations of the cerebral hemisphere, cerebral hemisphere तक पहुंचता है, and which is passes through the thalamus। cerebral hemisphere तक जब पहुंचेगा by through the thalamus and directly sensory information to the cerebral cortex। तो ऐसे पूरा फॉर्मेशन होता है थैलेमस का। तो थैलेमस is generally present into the middle of the forebrain। All this type of the sensory information that is received by the cerebral hemisphere passes through the thalamus, and that is like a sensory information which is directly passes to the cerebral cortex. These are generally part of the thalamus. Third is called as the hypothalamus. That is called as the hypothalamus। hypothalamus is just below to the thalamus। thalamus जो होता है फोरब्रेन का सेंटर में, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड पोर्शन होता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जनरली कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज लाइक इन योर बॉडी, ब्लड प्रेशर से, हंगर है, बॉडी टेम्परेचर है, थर्स्ट है, ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं बॉडी के वो कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जनरली रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट the body temperature, blood pressure, thirst, hunger, this type of activities। it also connect the forebrain and hindbrain। forebrain और hindbrain को दोनों को connect कौन करता है, that is connect by the hypothalamus, and it also control the activities of eyes and ears। eyes और ear की activities को भी hypothalamus control करता है। so that is the first structure of the forebrain। second discussion पे the midbrain के बारे में। midbrain generally इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ विजन, हियरिंग एंड टच। दैट इज कॉल्ड एज द विजन, हियरिंग, टच। दिस आर द जनरली कॉन्सेप्ट व्हिच इज कंसीडर्ड इनटू द मिडब्रेन। तो विजन के रिलेटेड काम, सो हियरिंग के रिलेटेड काम, सो टच के रिलेटेड काम, सो दिस इज जनरली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द मिडब्रेन। तीसरा जो आता है उसको कहते हैं हिंडब्रेन। हिंडब्रेन हिंडब्रेन हैविंग आल्सो थ्री स्पेसिफिक पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम, pons and medulla oblongata। First we discussing about the cerebellum। Cerebellum generally it lies onto the dorsal side of the pons and medulla oblongata। Cerebellum is generally implemented onto the dorsal side of the pons and medulla oblongata। It is having a specific activities to balance the body posture। जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस, पोस्चर का बैलेंस करते हैं, that is generally implemented by the hindbrain of a specific part of the cerebellum। it also coordinates the body movement like you are dancing है, walking है, you are riding on bicycle। These all these activities of these implementations can be done by the cerebellum of the hindbrain। second is called as the pons, PONS, pons। pons has generally specific part of the respiration।
इट जनरली रेगुलेट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, जैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पॉन्स, और एक स्पेसिफिक पार्ट को इंप्लीमेंट करता है। इट आल्सो हैविंग टू कोऑर्डिनेट द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी ये लिंक को प्रोवाइड करता है। थर्ड इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जिससे बहुत तरह के इनवॉलेंटरी फंक्शंस है, वेरियस टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी फंक्शन व्हिच इज डन इनटू योर बॉडी लाइक हार्ट बीटिंग्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस, elementary canals का works, movement, expression, this all having the works that can be controlled and regulated by the this medulla oblongata, like secretions of hormone, relax of your muscles, sneezing, swelling, this type of activities which is generally implemented by this type of the formation that is called medulla oblongata. तो these are the structure of the human brain, जिसके अंदर human brain के अंदर कौन-कौन से formations आते हैं, जिसमें पहला है forebrain के 3 अलग-अलग parts है, उसके बाद midbrain है और hindbrain है. These are the general topics which is considered as a part of the formations which is linked with the forebrain, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कहा जाता है. उसमें एक और पार्ट आता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. स्पाइनल कॉर्ड which we have discussing in your previous part of classes, so we move ahead. So next topic that is called autonomous nervous system. Now autonomous nervous system का एग्जाम में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन ब्रेन आता है. तो what do you mean by the autonomous nervous system? Generally यहाँ पे autonomous nervous system में auto it means what? Self. ये जब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था कि ऑटो इट मींस सेल्फ. सो ऑटो मींस सेल्फ एंड नॉमस मींस गवर्निंग. तो सेल्फ गवर्निंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम. ये सेल्फ गवर्निंग व्हिच हैव टू बी इंप्लीमेंट इटसेल्फ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. Now what is the main function of autonomous nervous system? Autonomous nervous system का main function क्या है? What generally have to implement the autonomous nervous system? So generally the system which is responsible for the all these type of activities of the organs located into the body automatically without thinking any kind of thought, it generally respond it activities which generally done by the autonomous nervous. तो ऐसी बहुत तरह के हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज है, ऐसे बहुत तरह के ऑर्गन्स है जो किसी भी तरह के थिंकिंग या थॉट के बगैर वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है. जैसे इस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो क्या करते हैं दैट जनरली हैव टू रेगुलेट द प्रोसेस, लाइक जैसे डाइजेशन प्रोसेस है, हार्ट बीट का प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं दैट जनरली डन बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑटोनोमस, इसके जो नर्वस पार्ट्स जो होते हैं इससे कनेक्टेड होते हैं स्मूथ मसल्स के साथ, जैसे हमारे हेड से, ब्लड वेसल्स है, हार्ट से, लंग्स है, एलिमेंट्री कैनल से, किडनी है, ग्लैंड से, ऐसे बहुत तरीके के जो हमारे काफ़ी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्मूथ मसल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके साथ इसके जो टिश्यूज होते हैं ऑर्गन्स के जुड़े हुए रहते हैं. तो दिस जनरली पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ये पूरा उसका फंक्शन होता है जो हेल्प को रेगुलेट करता है इस तरह के बॉडी ऑर्गन्स को इंप्लीमेंट करने के लिए. अभी इसके टाइप्स में अगर आप देखिए तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं. एक आता है जिसको हम सिम्पैथेटिक कहते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं. सिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. सिम्पैथिक जो है और पैरासिम्पैथिक जो है, दोनों का काम तो होता है कि ये हमारा जो इन्वॉलेंटरी फंक्शंस जो होते हैं उसको कंट्रोल रेगुलेट करना. इन्वॉलेंटरी यानी जिसको आप देख ना सकते हो. तो पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक दोनों जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, दोनों का काम जो होता है कि ये हमारे बॉडी का जो इन्वॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए. तो इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोऑर्डिनेटरी टू ईच अदर. एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, जो दूसरा करेगा उसका उल्टा दूसरा करेगा, दैट ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री. जैसे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑलवेज विल इंक्रीज द हार्ट बीट. सब दौड़ते हो, दौड़ के आते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है. व्हाइल द पैरासिम्पैथिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दैट डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म. उसको नॉर्मल फॉर्म में कौन लेके आता है? उसको हम पैरासिम्पैथिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेल्फ गवर्निंग ऑटोनोमस पार्ट जो होता है, जो इंप्लीमेंट करता है हमारे बॉडी के इन्वॉलेंटरी फंक्शंस होते हैं जो बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंकिंग और थॉट. वो सारी एक्टिविटीज को जो परफॉर्म करता है वो होता है आपका इन्वॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक ऐसे 2 तरीके के आते हैं. चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है दैट इज अबाउट द सेक्स हार्मोन्स, जिसमें हम 2 ही डिस्कशन करेंगे. इससे हार्मोन्स जो होते हैं जैसे एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनाइन ग्लैंड्स होते हैं,
वो अलग अलग तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, अलग अलग तरीके के हार्मोन सिचुएटेड करते हैं और जो अलग अलग ऑर्गन के साथ लोकेटेड होते हैं। पर हम केवल दो ही पढ़ते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। तो मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों क्या काम करते हैं। तो जनरली मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में से जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज अ टेस्टोस्टेरोन। इसका मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज टू कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, secondary sexual characteristics, deeper voice, as well as to the beard and the moistures. These are the generally characteristics which generally implemented by the hormones, as well as it generally produce the sperms. Testes जो होते हैं वो sperms को produce करते हैं, which is generally used to be fertilization as a part of mating to female and males. So that is about the testosterone. उसी तरह female sex hormones में देखिए, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर ओवरीज जो है, ओवरीज प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स टू नॉन एज अ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो तरीके के फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का काम अलग अलग है। एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है, जनरली हेल्प टू एस्ट्रोजन इज टू कंट्रोल the development of female sex hormones as well as the secondary sexual characteristics of female voice like soft skin, as well as to the glands under the control of estrogen. प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है कि जनरली हैव टू बी कंट्रोल द चेंजेस ऑफ यूट्रस इनटू द मैस्टुरेशन साइकिल। मैस्टुरेशन साइकिल के अंदर जो यूट्रस के अंदर चेंजेस होता है उसको प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है। इट आल्सो रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ओवा टू द ओवरीज। ओवरीज के अंदर से जो ओवा का प्रोडक्शन होता है व्हिच इज आल्सो कंट्रोल्ड रेगुलेटेड बाय द प्रोजेस्टेरोन। ये दो तरीके के फॉर्मेशन होते हैं जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है, जैसे मेल सेक्स हार्मोन के अंदर देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज जनरली हेल्प टू इंप्लीमेंट द प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डीपर वॉइस, बेड एटसेट्रा। जबकि फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल बाय द एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो यूट्रस का जो चेंजेस होती है उसको कंट्रोल रेगुलेट करना। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक दैट डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे रेगुलेटेड होता है? So if you seen about the properties of hormone, each type of hormone, each hormone is produced a specific kind of the cells. हर एक हार्मोन एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स के अंदर से प्रोड्यूस होता है। each hormone is produced by a specific kind of cells. पहले इसकी प्रॉपर्टीज होती है, हार्मोन्स आर नॉट इफेक्टिव एट द साइट ऑफ सिंथेसाइज। जिस लोकेशन पे अगर हार्मोन को जाना है अगर वो वहां तक नहीं जाएगा तो इट इज नॉट बीन इफेक्टिव। जैसे ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए अगर आप देखिए, और उसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर देखिए, तो स्पेसिफिक जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं अगर वो स्पेसिफिक पार्ट्स तक नहीं जाएंगे तो इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट देयर साइट, वो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे। हार्मोन्स जनरली डायरेक्टली पॉड इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर ही रेगुलेटेड होता है। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गन के साथ, वो ब्लड के अंदर पॉड होते हैं और दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, क्योंकि ब्लड ही जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हर एक ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इन्फ्लुएंस में भी ये जो स्टेशनरी या इनहिबिटरी होता है, इसीलिए बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं इस हार्मोन्स की वजह से। इसीलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, इसीलिए आप इसको रेगुलेटर ऑफ केमिकल्स भी कह सकते हैं। हार्मोन्स जनरली हैव टू प्रोड्यूसिंग एट द रेगुलर इफेक्ट, एक स्पेसिफिक इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तब उसके चेंजेस देखने को मिलता है। और केमिकली हार्मोन्स आर जनरली स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिसाइड एंड स्टेरॉइड्स। इसको बायोलॉजिकल एनिमीज भी कहते हैं, जो किसी भी तरह के फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। So these are the generic topics of properties of hormones. So students, I hope that for today's session that should be easily understandable by you. So what we have to study today about एक structure of human brain, जिसमें तीन अलग-अलग उसके types आएंगे, forebrain, hindbrain, midbrain. Then also we discussing about the autonomous nervous system. Then
a specific part of this hormones, that is called male and female hormones and properties of hormones. I hope you easily understood the guys. So once again, stay home, stay safe, take care, and just revising this type of questions by using digital medium of learning, and keep upgrading your knowledge by writing this type of question in your own words. Keep revising, keep practicing. Stay home, stay safe, take care, and bye.